ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ବୁଷ୍ଟରରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଟପିକ୍ ନା ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର୍ସ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ MCQ ସିରିଜ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର୍ସ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଚାପ୍ଟରଟେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ 50ଟା MCQ ନେଇକି ଆସିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ 25ଟା MCQ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆଉ 25ଟା MCQ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାଟୋ, ପାଉଡର ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଟ୍, ରାଇସ୍ ଲିଫ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଏହାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। Which organism causes lead blight of potato? କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାଟୋ ରୋଗଟାକୁ କରେ? ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ। ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାଟୋ ରୋଗଟାକୁ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କ'ଣ ଅଛି। ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ, ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାଟୋ ଇଜ କଜ୍ଡ ବାଇ ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ କି ରୋଗ କରେ? ନା ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାଟୋ। ଆର୍ ଓମାଇସିଟିସ୍ ଅଫ ଫଙ୍ଗସ୍, ଆର୍ ଓମାଇସିସ୍ ଅର୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓମାଇଟିସ୍ ବା ଏଇଟା ଫଙ୍ଗସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଲାଇକ୍ ପାଥୋଜେନ୍, it is famous for rapidly destroying potato foliage under cool and humid condition। এইটা କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ କୁଲ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଏଶ୍ଚର ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ କୁଲ୍ ଥାଏ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ସେଇ ସମୟରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଇଏ ରାପିଡଲି ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯୋଉ ଆଳୁର ଯୋଉ ପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କିଏ ନଷ୍ଟ କରେ? ନା ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ। ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ନାଁ ଥିଲା ଅଷ୍ଟିଲାଗୋଟ୍ରିଟିସି, କଜେସ୍ ଲୁଜ୍ ସ୍ମଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱେଟ୍। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଥିଲା ଅଷ୍ଟିଲାଗୋ ଟ୍ରିଟିସି ବା ଟ୍ରିଟିକା ବି କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରିଟିସିଆ, କଜେସ୍ ଲୁଜ୍ ସ୍ମଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱେଟ୍। ତାପରେ ବାଇପୋଲାରାଇଜ ଓରାଇଜା, କଜେସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ରାଇସ୍। ଆଉ ଯୋଉ ବାଇପୋଲାରାଇଜ ଓରାଇଜା ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରେ? ନା ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ କରେ। ଆଣ୍ଡ ପୁସିନିଆ ଗ୍ରାମିନିସ୍ କଜେସ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱେଟ୍। এইটা কি করে? না ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱେଟ୍ করে। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଧାଡ଼ିରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି? ଅଷ୍ଟିଲାଗୋଟିଟିକି କି ରୋଗ କରେ? ନା ଲୁଜ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱେଟ୍। ବାଇପୋଲାରାଇଜ ଓରିଜା କି ରୋଗ କରେ? ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ରାଇସ୍। ପୁସିନିଆ ଗ୍ରାମିନିସ୍ କି ରୋଗ କରେ? ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱେଟ୍। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ପୋଟାଟୋ କି କି କେଉଁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ। এইটা ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଏମିତିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆକୃତି ହେଇଛି, ଏମିତିଆ ଆକୃତି ବା ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଏ। The most typical early symptom of late blight on potato leaves is, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଡିଜିଜଟା ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ପୋଟାଟୋ ଲିଭ୍ରେ ବା ଫୋଲିଏଜରେ ବା ପତ୍ରରେ କି ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ? ନା ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ୱାଟର ସୋକ୍ଡ ପେଲିଗ୍ରିନ୍ ଅର୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଲିଜନ୍, ମାନେ ପାଣିର ଗୋଟେ ଦାଗ, ଯୋଉ ଦାଗଟା ପେଲିଗ୍ରିନ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ଖତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ସମୟରେ ହୁଏ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଅଧିକ ଥିବ, ମଏଶ୍ଚର ଅଧିକ ଥିବ, ୱାଟର ଜମା ହେଇକି ରହିବ, ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାଟୋ ଡିଜିଜଟା ହବ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ? ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା। କେମିତିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇବ ସିମ୍ପଟମ୍? ନା ୱାଟର ସୋକ୍ଡ, ମାନେ ପାଣି ଗୋଟେ ସର୍ଫେସରେ ଯଦି ପାଣି ଶୁଖି ହେଇଯାଏ, ଯୋଉ ପାଣିର ଯୋଉ ଦାଗ ରହିଯାଏ, ସେମିତିଆ ଦାଗ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ଦାଗଟାର କଲର କେମିତି? ପେଲିଗ୍ରିନ୍ ଟୁ ବ୍ରାଉନ୍ ଲିଜନ୍ ରହିବ। ନା ପେଲିଗ୍ରିନ୍ ନା ବ୍ରାଉନ୍ ଲିଜନ୍, ତାଙ୍କର ମଝି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କଲରଟେ ରହିବ। अर्ली लेट ब्लाइट लेसन्स आर इरेगुलर, କୌଣସି ସେପ୍ ତାର ଠିକ ନଥାଏ। ୱାଟର ସୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଲିଗ୍ରିନ୍ ଇରେଗୁଲାର ଥାଏ, କୌଣସି ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେପ୍ ନଥାଏ, ଇରେଗୁଲାର ଥାଏ। ଆଉ ୱାଟର ସୋକ୍ ମାନେ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଶୁଖିଗଲେ ଯୋଉ ୱାଟର ମାର୍କ ରହିଯାଏ, ସେମିତି ମାର୍କ ରହିଯାଏ। ଆଉ ପେଲିଗ୍ରିନ୍ ଥାଏ। ଦେ ଏନଲାର୍ଜ ରାପିଡଲି ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଅର୍ ବ୍ଲାକ୍। ତାପରେ ସେଇ ପେଲିଗ୍ରିନ୍ କଲରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ହେଇକି ସେଇଟା କେମିତିଆ କଲର ଆସିଯାଏ? ବ୍ରାଉନ୍ ଟୁ ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ରାଉନ୍ ନହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ହେଇଯାଏ।
तापर व्हाइट डाउनी ग्रोथ मे appears on the lower surface of leaf गोटे व्हाइट कलर रो स्ट्रक्चर बा व्हाइट कलर रो गोटे पैचेस देखा जीवो कोठी आपनकर लोअर सरफेस ऑफ लीफ ड्यूरिंग ह्यूमिड वेदर जेतेले एनवायरनमेंट रे जलीय बाष्प अधिक थिबो सेही समय रे कोन होबा आपनकर गोटे व्हाइट कलर रो पाउडरी पैच सॉरी व्हाइट कलर रो ग्रोथ देखा जीवो कोठी आपनकर पत्र तल आड़े व्हाइट पाउडरी पैचेस सजेस्ट पाउडरी मिल्ड्यू while black powder in the ear in the ear indicates smut आउ जदि सेमती व्हाइट पैचेस थिबो किंतु जदि सेटा व्हाइट पाउडरी पैचेस हला सेटा हे जाउची कोन पाउडरी मिल्ड्यू एटा होची अलगा रोग जदि से पाउडरी पैचेस हे जिवो ताहेले कोन होबो सेटा पाउडरी मिल्ड्यू रोग हे जिवो आउ जदि ब्लैक पाउडर देखा जिवो सेटा हबो इंडिकेट्स स्मट रोग देखा जिवो नेक्स्ट व्हाइट कॉटनी growth in lead blight usually appears mainly on the जो गोटे कटनी ग्रोथ देखा जीवो व्हाइट कलर रो कटन जमा हैला भलिया देखा जीवो पत्र तळ पटे सेटा केमिति देखा जाय ना सेटा कोठी हुए ना लोअर सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड लीफ इन ह्यूमिड वेदर रे हेले कोन हबो गोटे धळा रंगर कटनी ग्रोथ माने तुला जमा हेकी रहिला भलिया गोटे स्पॉटे दागटे ग्रोथटे आसीबो तुला जमा हैला भलिया किंतु पाउडर जमा हेले पाउडरी मिल्ड्यू हे जिवो किंतु जदि व्हाइट कलर कटन तुला जमा हैला भलिया लागिला सेटा को कहबे कोन सेटा कोन हबो ना सेटा होची लेड ब्लाइट पोटैटो डिजीज कोठी हुए ना लोअर सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स इन ह्यूमिड बोले ଯେତେବେଳେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥିବ କେମିତିଆ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର ନା ଇନ୍ କୁଲ ମଏଷ୍ଟ ୱେଦର ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ଇନଫେଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସେସ୍ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଓପୋର୍ସ एंड स्पोरांजिया कौन से प्रोड्यूस करिवो ना स्पोरांजियोफोर्स एंड स्पोरांजिया प्रोड्यूस करिवो एट लेसन्स मार्जिन कौन खत खत चिन्ह हिला भलिया कॉमनली विजिबल एज व्हाइट कॉटनी ग्रोथ केमितिया देखा जीवो धला रंगर तुला जमिला भलिया देखा जीवो on the lower leaf surface कोठी ना पत्र तळ पटे this growth is important because it produces inoculum for rapid secondary spread एई गुडा को बहुत इम्पोर्टेंट कहीं ना से इनोकुलम सृष्टि कर देथे नेक्स्ट टाइम सृष्टि होबे पाई देखो इनोकुलम माने होउची मने करंतु पोटाटो आलू भितरे एई वर्ष पसी जाईची कोन आपनकर गोटे एई जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान गोटे फंगस पसी जाईची किछि फंगस पसी जाईची से एई वर्ष जे पसीची से कोन हो ता भितरे से गोटे ब्लैक कलर मार्क करके रही जिवो परवर्ती अवस्थारे जेतेबेले विंटर पास करिवो एंड समर सीजन पास करिवो एई समय पर एई दुईटा सीजन गला पर से आउ थरे वर्षा सीजन रे ह्यूमिडिटी पाइबो आ एई आलूटा को जेतले आउ थरे लगा हबो कोठी जमी रे सेई जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान्स रो जो अंश कला अंश बा तार जो रोगर अंश विषय रही जाईची सेई अंशरु जेतले नुआ रोग आउ थरे सृष्टि हबो सेई आलू गछरे बा आलू रे ताकू कुआ जे सेई जो नुआ गोटे सीजन पार हिला परे नुआ रोग सृष्टि करि पारुथबा क्षमता को इनोकुलम कुहा जाय जोटा कि गोटे दुटा सीजन पार हिला परे आउ थरे सृष्टि है सेई रोग तो सेथिबा को रैपिड सेकेंडरी स्प्रेड कुआ जायछि जे कोन ना ता पर फेज रे मध्य ता पर क्रॉप प्रोडक्शन रे मध्य बा आपनकर फार्मिंग रे मध्य कोन होय एटा झमेला करे एमितिया मार्क सब करिवो नेक्स्ट अंडर कूल कंडीशन स्पोरांजिया ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान्स में रिलीज कौन रिलीज करिवो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान्स ठंडा परिवेश रे कौन रिलीज करे देखंतु से करे जूएस्पोर रिलीज करे किंतु से जो जूएस्पोर रो फ्लाजेला थाई केतेटा फ्लाजेला दुईटा माने एमितिया एक जूएस्पोर जहार केतेटा फ्लाजेला दुईटा फ्लाजेला अछि एटा गोटे फ्लाजेला दुईटा फ्लाजेला थिबो एटा ताको मूवमेंट करिबारे सहाय्य करे लोकोमोशन करिबारे सहाय्य करे तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान्स कोन रिलीज करे ना बाइफ्लाजेट
बाइफ्लाजिलेट जूस्पोर प्रोड्यूस करे बा रिलीज करे। देखंतु Phytophthora infestans forms sporangia under cool, wet conditions. This sporangia can release motile biflagellate zoospore. These zoospores germinate on wet plant. ଗଛ ଓଦା ଥିଲେ ଏଇଗୁଡାକ germinate ହେଇଯାଏ surfaces and initiate infection. ଆଉ ଯେତେବେଳେ wet surface ଏଇଟା formation ହେଇଯାଏ germinate ହେଇଯାଏ ସେ କ'ଣ କରେ infection କରିବ। Teliospores, Aciospores and Piscinospores are associated with rust life cycle। ताहेले जेतले एई जो लाइफ साइकिल थाए कोउथुर आरंभ होए टेलियोस्पोर्स टू तापर एसियोस्पोर्स टू एंड पाइसिनोस्पोर्स आर associated with rust life cycle सहित associated अछि एगुडाको। माने एई जो पाउडर सॉरी आपनकर लेड ब्लाइट पोटाटो सहित एई तीनटार कोनोसी एसोसिएशन नाही। एई तीनटार आपनकर अलगा रोग सहित एसोसिएशन अछि सेटा कहूची सेटा होची रस्ट सहित। नेक्स्ट एठी देखंतु एई जो स्पोरांजियम रु कोन बाहरुची जूस्पोर। जूस्पोर रे केतेटा फ्लाजेला अछि दुईटा तो सेठी बे आकु कहै जाय बाइफ्लाजेलेटेड जूस्पोर। Next, the major source of primary inoculum for lead blight of potato is usually जे इनोकुलम हेबार बोले आउ थरे नुआ रोग हेबार कारणटा कोन मेजर सोर्स कोन ना इन्फेक्टेड सीड ट्यूबर एंड वॉलंटस प्लांट। कोन इन्फेक्टेड सीड ट्यूबर माने जो ये आपनकर गंडीटा बा आलूटारे इन्फेक्शन हेई जाईची ऑलरेडी ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଲଗା ହବ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ରୋଗ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ଗଲା। ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଗଛ ମନେ କରନ୍ତୁ କିଛି ଗଛ ଅଟୋମେଟିକଲି ଯୋଉ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇ ଗଛଟାର ମଞ୍ଜିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଅଟୋମେଟିକ ସେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ରହିଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଅନାବନା ଗଛରେ ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦବ বা ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। The pathogen often survives in infected potato tubers। କୋଉଠି ଆସିପାରେ ସେଇ ପାଥୋଜେନଟା ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ପୋଟାଟୋ ଟ୍ୟୁବରରୁ ଆସିପାରେ ଆଳୁର ଅଂଶରୁ ଆସିପାରେ। କଲ୍ ପାଇଲ୍ସ ସରି କୁଲ ପାଇଲ୍ସ। କୁଲ ପାଇଲ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଗଛ କଟିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା କରି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଜମାଟା ରହିଗଲେ ମାନେ ଅନାବନା ଘାସ ଯାହା ସହିତ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଟୋପ୍ଥରା ଇନଫେଷ୍ଟନ୍ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଯୋଉଠି ଜମା ହୁଏ ସେଇ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। एंड भल्यूंटर प्लांट जो अनाबना गछ सृष्टि हुए ऑटोमेटिकली सेथिरे जदि पूर्वरु रही जाइथिबो ताहेले मध्य कोन हबो आपनकर एइथिरे माने पाथोजेन आसी जीवो बा फाइटोप्थरा इन्फेस्टन आसी कि लेड ब्लाइट पोटैटो डिजीज करिवो। When infected tubers sprout, disease shoots produces sporangia that spread to healthy plants। ଆଉ ସେଇ infected tube sprout ରୁ ବା infected tubers ରୁ ବାହାରିକି ସବୁ healthy ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବା spread ହବ। Certified disease free seed tubers reduce this primary inoculum। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ certified disease free seed tubers ନେବେ ମାନେ ଯୋଉ seed ଟାରେ ରୋଗ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସାର୍ଟିଫାଇଡ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟେଡ ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଳୁର ଟ୍ୟୁବର କୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଇନୋକୁଲମ କୁ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନୋକୁଲମ କୁ ଆପଣ ରୋକି ଦେଇ ପାରିବେ। Which weather condition strongly favors lead blight of potato। କୋଉ एनवायरनमेंट ଟା lead blight potato disease ହେବାରେ ବହୁତ strongly favor करे ମାନେ help करे ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର cool humid weather with prolonged leaf wetness। ମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପାଣି ଜମିଥିବ କୋଉଠି ପତ୍ରରେ ଆଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଲେଡ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ ପୋଟାଟୋ ଡିଜିଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢିଯାଏ। Lead blight develops explosively when temperature is cool। ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଥିବ to moderate କମ ଆକା କଥା କହୁଛି and humidity is high ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଚୁର ଥିବ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ। Rainfall, fog and prolonged leaf wetness favors sporulation।
जदि वर्षा होथिबो पत्र ओदा हेइथिबो फग जमी जाइथिबो फग आसी जाइथिबो सेही समय रे कोन हबो एक्सप्रेशन बहुत देखा जाए जूस्पर रिलीज एंड इन्फेक्शंस जूस्पर भारिक इन्फेक्शन है ड्राई वेदर स्लो द डिजीज बिकॉज स्पोरांजिया एंड जूस्पर नीड मॉइस्चर ड्राई स्पोर रे कोन होई सॉरी ड्राई एनवायरनमेंट रे कोन होई एई डिजीज टा बहुत स्लोली डेवलप करे कारण कोन ना यार जो स्पोरांजिया अछि बा जूस्पर अछि आर डेवलपमेंट पाई कोन दरकार पड़े आपनकर मॉइस्चर दरकार पड़े जदि मॉइस्चर मिले नहीं ताहेले कोन हबो एटा बहुत स्लोली डेवलप करिवो बा किछिटा भी नष्ट भी हेइ जाय रोग नाश भी हेइ जाय सफा हेइ जाय ड्राई एनवायरनमेंट नेक्स्ट व्हिच ट्यूबर सिम्पटम इज एसोसिएटेड विथ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को ट्यूबर सिम्पटम ता लेट ब्लाइट पोटैटो सहित जड़ित ना लेट ब्लाइट पोटैटो सहित जड़ित होउची रेडिश ब्राउन ग्रानुलर रट इनसाइड ट्यूबर कौन ना जो आलू भितर जो रेडिश ब्राउन कलर हो जाए सेटा ही होची कौन लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज जदि आलू भितर रेडिश ब्राउन कलर आसे गोल गोल ताहेले सेटा की रोग हबो ना आपनकर लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज कहजिवो लेट ब्लाइट कैन इन्फेक्ट पोटैटो ट्यूबर से कौन करे से आलूर अंश को आलूटाକୁ आक्रमण करे externally the tuber may show irregular brown or purplish areas बाहर देखिले जना पड़िबो जे आपनकर इरेगुलर ब्राउन और पर्पलिश एरिया अछि किछि इरेगुलर शेप अछि को कलर रो ब्राउन टू पर्पल कलर रो on cutting the flesh often shows reddish brown granular rod extending inward बाहर रो छोट छोट बा इरेगुलर शेप रो मार्क देखा जिवो किंतु ताको कटिला परे देखिबे जे ना ता भीतर को भी पसिकी अछि एई रोगटा कोउटा ना आपनकर लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज की प्रकार हबो रेडिश ब्राउन ग्रानुलर रॉड इनसाइड ट्यूबर ता भीतर को भी थिबो एई डिजीज ता ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ शेप्ड ଲିଜନ୍ସ ଆର୍ ଟିପିକାଲି ଅଫ ରାଇସ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ शेप ଲିଜନ୍ସ ଖତ କୋଉଠି ଥାଏ ରାଇସ୍ ରେ ଥାଏ ରାଇସ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଜ ରେ ନଟ ପୋଟାଟୋ ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ ଏଇଟା ପୋଟାଟୋ ରେ ନ ଥାଏ କୋଉ ଡିଜିଜ ଟା କଥା କହୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ शेप ଲିଜନ୍ସ with gray center ଏଇଟା କୋଉଠି ଥାଏ ନା ରାଇସ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଜ ରେ ଥାଏ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ शेप ଲିଜନ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ବାହାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ଅଛି ଏଇଠି ବି କିଛି କିଛି ସେପ୍ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେପ୍ ଆକୃତିଟା ମାନେ ହେଇଛି କଣ ଲେଡ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ପଟାଟୋ ତାକୁ କାଟିଲା ପରେ ଆଳୁ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକି ଅଛି ଭିତରକୁ ତ ତା ଭିତରକୁ ସେଇଟା ପଶିକି ଥାଏ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଏଇଠି which is the best preventive control for lead blight at planting ये जो लेट ब्लाइट पोटैटो प्रिवेंटिंग कौन ना सेटा होची यूज सर्टिफाइड डिजीज फ्री सीड ट्यूबर्स এই জিনিসটা না সার্টিফাইড ডিজিজ ফ্রি সিড ব্যবহার যে কোনসি রোগ পাই যে কোনসি চাষ পাই যদি করিবে সার্টিফাইড ডিজিজ ফ্রি সিড বা টিউবর কু ସବୁ ଫସଲ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ବା ରୋଗ କମ ହବ नेक्स्ट होची हाँ इट एक्सप्लेनेशन लिखा है बिकॉज इन्फेक्टेड ट्यूबर्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम जदि गोटे ट्यूबर्स को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो जाइए से इन्फेक्शन इन्फेक्टेड जदि ट्यूबर्स टाको आपण लगेइबे जमी रे से कोन करिवो ना आपण को जमी रे कोन करिवो सेई जो माने रोगटा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट कोन हबो रीग्रोथ हेकी टोटल डिजीज रे पाल्टी जिवा आ से कोन हबो आपनकर इन्फेक्टेड रु आपनकर हेल्दी प्लांट को स्प्रेड हबा आरंभ करिवो प्लांटिंग सर्टिफाइड डिजीज फ्री ट्यूबर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्टेप्स जदि आपण सर्टिफाइड डिजीज फ्री ट्यूबर्स नेबे सेटा होची सबुडो बेस्ट स्टेप फॉर कोन ना अवॉइडिंग दिस डिजीज रिमूवल ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स आउ कोन करिवे ना जो अनाबना गछ अछि अनावश्यक गछ अछि ताकू कोन करिदेबे ना संगे संगे जोटा जतले देखिबे टाणी की काढी देबे रेसिड्यू मैनेजमेंट ड्रेनेज रेसिड्यू बोले जो अनावश्यक पार्ट भी जदि रही जाउची से अनाबना गछर ताकू भी जेमतेले भी नष्ट करि देबे ड्रेनेज पानी को ठीक ठाक बहिबा को देबे
ଆଉ କଣ ସ୍ପେସିଂ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମଲି ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ମେ ଅଲସୋ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରେସର। ଆଉ ଯଦି ଟାଇମଲି ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ଔଷଧକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫଙ୍ଗସ୍ ତ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର ହବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହବ ଆଉ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ ଟା କମ ହବ। Next होची powdery mildew of wheat is mainly caused by powdery mildew of wheat is wheat disease टा माने wheat रे जो गहम रे जो हुए powdery mildew disease काहा जोगु हेई थाए एक्चुअली एटा सेकंड टाइप ऑफ डिजीज रे पळे आसी ऑलरेडी 8टा थिला आपन फर्स्ट टाइप ऑफ डिजीज रो तो एटा सेकंड टाइप ऑफ डिजीज सेकंड टाइप डिजीज रे कोन अछि powdery mildew disease powdery mildew disease काहा जोगु होई थाए ना ब्लूमेरिया ग्रामिनीस एफएसपी ट्रिटिसी ए ब्लू कोठी कोठी ब्लूमेरिया ग्रामिनीस ही लेखि थई थाए तो एफएसपी ट्रिटिसी लेखंती नाही तो एडी कंप्लीट ना अछि टिके मन रखिबे कोन ब्लूमेरिया ग्रामिनीस एफएसपी ट्रिटिसी ताहेले पाउडर मिल्ड्यू रोग काहा जोगु हेई थाए ब्लूमेरिया ग्रामिनीस द्वारा हेई थाए काहा जोगु हेई थाए ब्लूमेरिया ग्रामिनीस एफएसपी ट्रिटिसी नेक्स्ट एठी देखंतु in wheat powdery mildew is caused by Bloomeria graminis FSP TTC. It produces white to grey powdery growth. ये कौन करे धଳାରୁ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗର ମାନେ ପାଉଁଶ ଗ୍ରେ ବୋଲେ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଧଳା या ତ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ପାଉଡର ଗ୍ରୋଥ କରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଉଡର ଭଳିଆ ଗ୍ରୋଥ କରେ କୋଉଠି on leaves and other aerial part ପତ୍ରରେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଂଶରେ ଯୋଉଠି କାରଣ ଏସବୁ ହ୍ୱେଟ୍ ତ ତାର ସେତେ ଶକ୍ତ ଡାଳ ନଥାଏ ସେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ ହେଇଥାଏ ତାର ପ୍ରାୟ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତଳରୁ ଆକା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ସହଜରେ ସବୁ ଅଂଶରେ ଗ୍ରୀନ ଥାଏ ସବୁ ଅଂଶରେ ହେଇଯାଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଂଶ ପତ୍ର ଭଳିଆ ହିଁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ ତ ଅଦର ଏରିଆଲ ପାର୍ଟସ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଲେଖିଛି ম্যাগনাপোর্থ ওরিজা কজেস রাইস ব্লাস্ট তাহলে রাইস ব্লাস্ট ডিজিজ কিয়ে করে না ম্যাগনাপোর্থ ওরিজা কজেস কি ডিজিজ রাইস ব্লাস্ট অস্টিলাগো টিটিসি কজেস লুজ স্মট অফ হোয়েট जो लूज स्मट किए करे ना ऑस्टिलागो टीटीसी आउ एठी जो अछि कोन पाउडर मिल्ड्यू ऑफ व्हाइट देखंतु व्हाइट रे दुईटा जाक रोग अछि एठी पाउडर मिल्ड्यू भी अछि आ आपनकर लूज स्मट ऑफ व्हाइट भी अछि तो लूज स्मट ऑफ व्हाइट कहा द्वारा हुए ना ऑस्टिलागो टीटीसी आ आपनकर पाउडर मिल्ड्यू रोग कहा द्वारा हुए ना ब्लूमेरिया ग्रामिनीस एफएसपी टीटीसी द्वारा होई थाए नेक्स्ट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एटा तो ऑलरेडी आपण देखि सारी चंती कहा द एई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंगस ता की रोग करे ना सेटा होची लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग करे एई जो रोग अछि पाउडरी मिल्ड्यू रोग एबे किए करूची ब्लूमेरिया ग्रामिनीस एफएसपी टीटीसी आर पूर्व रे नाम थिला एरिस्फी ग्रामिनीस एफएसपी ट्रिटिसी वर्तमान आकु कुआ जाय कोन ब्लूमेरिया ग्रामिनीस एफएसपी ट्रिटिसी एई मितिया देखंतु पत्र रे धळा पाउडर गेबा ग्रे कलर पाउडर जमी जीवो नेक्स्ट द विजिबल पाउडरी ग्रोथ इन पाउडरी मिल्ड्यू मोस्टली कंसिस्ट ऑफ जो विजिबल ग्रोथ हेइथिबा आपनकर कोउथिरे ना पाउडर मिल्ड्यू रे सेटा मेनली कोन जमी कि से पाउडर गुटा जमा हेई थाए ना सेथिरे थाए फंगल रो माइसिलियम एंड कोनिडिया माने जो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज रो माइसिलियम और कोनिडिया एई दुईटा जिंस जमा हेई धळा रंगर पाउडर बा पाउडरी पैच तयारी करे पत्र ऊपर फंगल माइसिलियम एंड कोनिडिया एटा भी गोटे फंगल डिजीज आ तार माइसिलियम और कोनिडिया द्वारा कोन हुए ना पाउडरी लेयर सृष्टि करे कोठी सृष्टि करे ना आपनकर गहमर पत्र रे नेक्स्ट wheat structure helps powdery mildew fungi absorb nutrient from living host cells ना सेटा होची को स्ट्रक्चर टा पाउडरी मिल्ड्यू को होस्ट सेल रु आपनकर तांकर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करिवारे सहाय्य करे सेटा होची होस्टोरियम स्ट्रक्चर माने पाउडर मिल्ड्यू रे जो होस्टोरियम स्ट्रक्चर अछि बा स्टेज अछि सेई कोन करे
ना गोटे होस्ट सेल रु न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करिवारे सहाय्य करे। पाउडरी मिल्ड्यू फंगी फॉर्म्स होस्टेरिया इनसाइड एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स रे भीतर कोन करे ना होस्टेरिया तैयारी करे। होस्टेरिया draw nutrients from living cells without immediately killing them। देखो तो जो पाउडरी मिल्ड्यू फंजी आ होस्टेरिया भीतर फरक एया जे होस्टेरिया माने होचे पाउडरी मिल्ड्यू फंजी भीतर गोटे एस्ट्रो भलिया पाइप भलिया डेवलप हे जाय। सेही पाउडरी मिल्ड्यू फंजी रे जतले आपनकर ए डिजीज रो जो ये अछि फंगस रे जतबेले आपनकर गोटे पाइप बा एस्ट्रो रे डेवलप हे जाय सेही अवस्था को ही कहा जाय होस्टेरिया। आ सेही पाइप माध्यम रे कोन करे से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करे। आ से धीरे धीरे निये संगे संगे ताकू मारे नाही। आ अप्रेसोरिया हेल्प अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। अप्रेसिया तार अप्रेसिया अवस्था कोन करे ना अटैचमेंट और पेनिट्रेशन करिवारे सहाय्य करे। जूएस्पर्स अकर इन ओमाइसिटिस ओमाइस ए जो आर जूएस्पर्स को अवस्था थाए ओमाइसिटिस अवस्था रे थाए एंड एशिया आर रस्ट फ्रूटिंग स्ट्रक्चर। एशिया कोन करे ना फ्रूट रे रस्ट स्ट्रक्चर तैयारी करे। नेक्स्ट पाउडरी मिल्ड्यू स्पोर्स आर कॉमनली डिस्पर्स्ड बाय। ए जो पाउडरी मिल्ड्यू स्पोर्स अछि एटा काहा द्वारा स्प्रेड हेई थाए गोटे जगह रो अन्य जगह को जाई थाए ना सेटा होची पाउडरी मिल्ड्यू स्पोर्स। जेहेतु पाउडरटा काहा द्वारा फुंकी देले भी उड़ी जिवो तो सेति पे एटा पवन द्वारा ही एपटरू सेपटू अधिक जाउची। काहा द्वारा जाए ना पाउडरी मिल्ड्यू स्पोर्स आर कॉमनली डिस्पर्स्ड बाय। साधारणतः पवन द्वारा टिके पवन बहिले एक गोटे जगह रो आ गोटे जगह को ऊपर उड़ी की शिफ्ट हेई जाय तार कोनिडिया जाको। किंतु कथा होची बाकी कोन अलगा माध्यम रे जायनी जाय किंतु सेही माध्यम रे कम जाय किंतु आपनकर विंड रे कोन स्प्रेड कोन हुए ना अधिक स्प्रेड हुए। Conidia of powdery mildew are light and are mainly dispersed by wind। Conidia जो थाए powdery mildew रो से कोन हेई थाए बहुत हल्का थाए आ ये कहा द्वारा उड़ी की जाई पारे पवन द्वारा उड़ी की जाए। आफ्टर रीचिंग ए susceptible host surface they germinate form infection structure and produce more conidia। से कोनोसी ये रे गला परे माने कोनोसी होस्ट सरफेस रे गला परे सेठी से तार इन्फेक्शन करिकि डेवलपमेंट करबा आरंभ करे और सेठी कोनिडिया तयारी करे causing repeated secondary infection in the crop। आउ थरे से कोन करे से क्रॉप रे इन्फेक्शन करबा आरंभ करे। Next, a special features of powdery mildew compared with many fungal leaf disease is that it usually especially features of powdery mildew compared with many fungal leaf disease is that माने तार की प्रकार स्पेशल फीचर्स अछि जहा कि अलगा फंगस रे देखा जाय नाही ना। अलगा फंगस रे जतले फंगल डिजीज हेबा पई कोन हुए ना सेही एनवायरनमेंट के मॉइस्चर हेइथिबो ह्यूमिडिटी हाई थिबो पानी जमी थिबो सेही जगह रे कोन हुए ना फंगल डिजीज स्प्रेड हुए। किंतु पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ता हेबा पाई पानी जमी थिबा दरकार नाही। डू नॉट रिक्वायर फ्री स्टैंडिंग वाटर ऑन लीव्स। कोन दरकार पड़े नाही ना पत्र ऊपर पानी जमी रहिबार आवश्यकता नाही। से कोन हबो किछि नथिले भी पाउडरी मिल्ड्यू हेई जाई पारिबो बा तार कोनिडिया कोठु भी उड़ी के आसिले कोनोसी एनवायरनमेंट दरकार नै से ऑटोमेटिकली सेथ्रु फूड अब्जॉर्ब करिकि कोन हबो ग्रोथ हेकी डिजीज करि देई पारिबो। एटा होची तार गोटे स्पेशल फीचर्स जोडा कि अलगा कोनोसी फंगस रे देखा जाय नाही। Many leaf pathogens requires free water for spore germination। तार स्पोर जर्मिनेशन पाई कोन दरकार पड़े ना अलगा फंगस रो कोन दरकार पड़े पानी दरकार पड़े। But powdery mildew often develop without free-standing leaf water। किंतु powdery mildew develop केमिति हुए तार स्पोर जर्मिनेशन केमिति हुए without water रे हेई जाए। High humidity and dense canopy still favor disease development। आउ जदि सेतरे हाई ह्यूमिडिटी अछि आ डेंस canopy बोले जदि सेठी गछर परिमाण अधिक अछि आ छाई पडुची ताहेले भी एई एनवायरनमेंट भी ताको कोन हबो
ना आपनकर फेवर करिवो ताकू सेही स्पोर को जर्मिनेट करिकी पाउडर मिल्ड्यू डिजीज करिबा पाई। बट कंटिन्यूअस लीफ वेटनेस इज नॉट एसेंशियल बट पत्र सब ओदा रहिबा बा मैक्सिमम टाइम ओदा रहिबा निहाती आवश्यक नुहे। Next, which control measure is commonly useful against powdery mildew? कोउटा को कंट्रोल टा को कले को मेजर्स टा को बाछि नेले आपनकर पाउडर मिल्ड्यू डिजीज टा कम हबो ना। एई जो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज को कंट्रोल करिवा पे आपण कोन करिवे ना, जेहेतु एटा फंगस फंजिसाइड व्यवहार करिवे ताहेले एते को प्रकार फंजिसाइड ना पाउडर मिल्ड्यू रे सल्फर बेस्ड फंजिसाइड यूज करले कोन हबो आपनकर एई रोगटा को कंट्रोल करिवा सहज हबो। केउ प्रकार फंजिसाइड व्यवहार करिवे जो फंजिसाइड रे सल्फर अछि सेही प्रकार फंजिसाइड व्यवहार करले पाउडर मिल्ड्यू रोग कम हबो बा कंट्रोल आसी जिवो। Sulfur based fungicides have traditionally been effective against many powdery mildew. पाउडर मिल्ड्यू रोग बहुत प्रकार अछि ता सेही प्राय पाउडर मिल्ड्यू डिजीज रे कोन हुए ना जो फंजिसाइड रे जो फंगस नाशक रे सल्फर थिबा ताकू व्यवहार करले ही एटा कंट्रोल हेई जीवो। हाउ कोन ना गुड एरेशन माने पवन ठीक ठाक जाउथिबे, रेजिस्टेंस वेराइटी एंड अवॉइडिंग एक्सेस नाइट्रोजन आर आल्सो इंपोर्टेंट। जो वेराइटी रे रोगटा कम हुए सर्टिफाइड वेराइटी आनिबे आउ नाइट्रोजन को एक्सेस नाइट्रोजन यूज करिवे नाही। डेंस प्लांटिंग and excess nitrogen often produce lush humid canopies that favor the disease। कोन ना गछ भी पाख पाख को लगेइबे नाही आउ एक्सेस जदि नाइट्रोजन रो परिमाण अधिक हेई गला ताहेले भी कोन हबो आपनकर एई एनवायरनमेंट एई पाउडर मिल्ड्यू डिजीज ता बढ़ी जिबार संभावना थाए बा रिग्रोथ करिवार संभावना थाए। नेक्स्ट, लेट इन द सेशन some powdery mildew fungi may form black sexual fruiting bodies called। जेतेबेले एंड सेशन एंड हे जाय सेही समय कोन करे किसी फंजी ब्लैक कलर रो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज तयारी करे माने किछि फ्रूट भलिया स्ट्रक्चर आसीबो जोटा सेक्सुअल स्पोर्स थिबो जोथिरे सेही अवस्था को सेही फंजी रो फंगस रो अवस्था को कोन कहिबे ना गोटे अवस्था जेतेबेले कि आपनकर पाउडर मिल्ड्यूटा कोन हबो ब्लैक कलर रो आसी जीवो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड माने ब्लैक कलर रो सेक्सुअल डेवलपमेंट पाई जो स्पोर तयारी हबो ताको कोन कहिबे ना ताको कहिबे चास्मोथिसिया। कोन कहिबे चास्मोथिसिया। देखंतु द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ पाउडर मिल्ड्यू गोटे स्ट्रक्चर हबो जोटा कि गोलाकार हबो फ्रूट भलिया सेथिरे सेक्सुअल डेवलपमेंट हेबा पाई गेन करिथिबो सेही स्पोर गुडाको बा आपनका पाउडर मिल्ड्यू रो पैथोजेंस गुडाको ताको कोन कहिबे ना आर कॉल्ड चास्मोथेसिया। They may appear as a small black dots। सेटा केमति देखा जिवो छोट कला डॉट भलिया देखा जिवो इन older mildew colonies। आ जेतेबेले से पुराना हेई जिवो सेटा से कोन कॉलोनी तयारी कर देबो एंड कैन हेल्प द पैथोजन सर्वाइव एडवर्स पीरियड इन सम स्पीशीज। आ ए चास्मोथिसिया कोन हबो जेतेबेले लेट सीजन रे माने एंड ऑफ द सीजन रे जो तयारी होची चास्मोथिसिया से कोन करिवो चेष्टा करिवो नेक्स्ट सीजन जे सर्वाइव करिबा पाई। केमिति सर्वाइव करिवो ना प्रथम से गोटे डॉट भलिया कला डॉट भलिया स्ट्रक्चर हो परवर्ती अवस्था रे से डॉट रु डेवलप हेकी कोन हबो कॉलोनी हेई जैतिबो कार चास्मोथिसिया रो ए चास्मोथिसिया कोन करिवो परवर्ती अवस्था रे नेक्स्ट पीरियड रे डिजीज सृष्टि करिवो। सिवियर पाउडरी मिल्ड्यू मेनली reduce L by जो सिवियर पाउडर मिल्ड्यू डिजीज केमिति कमेई पारिबे ना एटा कोन करे रिड्यूसिंग ग्रीन लीफ एरिया एंड फोटोसिंथेसिस। जेतले आपण ग्रीन लीफ एरिया कमेई देबा सॉरी जदि पाउडर मिल्ड्यू रोग अधिक हेई जाय पत्र ऊपर पाउडर धळा धळा अधिक जमा हेई जाय ताले से कोन करे
ନା ସିଏ କଣ କରେ ପତ୍ର ଉପରେ କଣ ହବ ନା ସବୁଜ ଅଂଶ କମେଇ ଦବ। ଯଦି ପତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ପାଉଡର ଜମା ହେଇଛି ସେ ସବୁଜ ଅଂଶ କମେଇ ଦବ। ଆଉ ଯଦି ସବୁଜ ଅଂଶ ଧଳା ପାଉଡର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତ ସବୁଜ କଣିକା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି କଣ ହବ ନା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବି କମିଯିବ। କଣ ହବ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଗ୍ରୀନ ଲିଫ୍ ଏରିଆ ମାନେ ଯୋଉଠି ପତ୍ରର ଆପଣଙ୍କର ପାଉଡର ଜମା ହେଇଯିବ କନିଡିଆ ଜମା ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ ଲିଫ୍ ଏରିଆ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଗ୍ରୀନ ଲିଫ୍ ଏରିଆ ଛୋଟ ହବ ତାର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେ କମ ହବ। ତ ସେଇଟା ଆର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି। Powdery mildew covers leaves with fungal growth, causes yellowing and premature drying and reduces photosynthesis। ସେ କଣ କରେ ନା ଧଳା ଧଳା ସ୍ପଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଉପରେ। ଆଉ ସେଇ ପତ୍ରରେ ଯଦି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣିକା ଯଦି ସବୁ ଘୋଡେଇ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣିକା ଦାୟୀ ଥାଏ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କମ ହୁଏ। ଲେସ୍ photosynthesis mean reduced assimilate supply for grain or fruit development। ଆଉ ଯଦି photosynthesis କମ ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଫୁଡ ସପ୍ଲାଇ କମ ହବ। ଯଦି ଫୁଡ ସପ୍ଲାଇ କମ ହେଲା ସେଇ ଗଛରେ ଗ୍ରେନ୍ ବା ଶସ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ଫ୍ରୁଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ ହବ ରେଜଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ ପୋର ଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି କଣ ହବ କମ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଗହମର। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୱେଟ୍ ଇଜ କଜ୍ଡ ବାଇ। ଯୋଉ ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ଅଛି ଗହମରେ ସେ ଗହମରେ ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟଟା କାହା ଯୋଗୁ ହେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆସିଲା ପାଉଡର ମିଲ୍ଡ ଉପରେ ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଉଡର ମିଲ୍ଡୁ ବି ହ୍ୱେଟ୍ ର ହୁଏ ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱେଟ୍ ର ହୁଏ। ତ ପାଉଡର ମିଲ୍ଡୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଲମେରା ଗ୍ରାମିନିସ୍। ଏଇଠି କଣ ଅଛି ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ପୁସିନିଆ ଗ୍ରାମିନିସ୍ ଏଫଏସପି ଟ୍ରିଟିସି। କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ପୁସିନିଆ ଗ୍ରାମିନିସ୍ ଏଫଏସପି ଟ୍ରିଟିସି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। କି ରୋଗ ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୱେଟ୍। Stem or black rust of wheat is caused by Pusinia graminis FSP TTC. It produces reddish brown pustules during the urididial stage and black telial pustules late in the season। ଏଗୁଡାକ କଣ କରେ କିଛି ଚିହ୍ନ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାର କଲର ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଅଷ୍ଟିଲାଗୋ ଟିଟିସି କଜେସ୍ ଲୁଜ୍ ସ୍ମଟ୍ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଡର ମିଲ୍ଡୁ ଗଲା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୱେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆହୁରି ଅଛି କଣ ଲୁଜ୍ ସ୍ମଟ୍ ଅଫ ହ୍ୱେଟ୍ ଯାହା ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟିଲାଗୋ ଟିଟିସି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କି ରୋଗ ନା ଲୁଜ୍ ସ୍ମଟ୍ ଅଫ ହ୍ୱେଟ୍। The alternate host of wet stem rust is ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ wet stem rust ଅଛି ସେଇ ଡିଜିଜ ଟା ଯୋଉ ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ନା ପୁସିନିଆ ଗ୍ରାମିନିସ୍ ଏଫଏସପି ଟିଟିସି। କିନ୍ତୁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଖାଲି ଗହମ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ହୋଷ୍ଟ ହଉଛି ହ୍ୱେଟ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ବା ହ୍ୱେଟ୍ ଗଛ ଗହମ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦରକାର ପରେ ସେଇଟା ହଉଛି ବାରବେରୀ ଗଛ। କି ଗଛ ବାରବେରୀ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱେଟ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ଇଜ ହେଟ୍ରୋସିୟସ୍। ହେଟ୍ରୋସିୟସ୍ ବୋଲେ ଦୁଇଟା ଗଛରେ ସେ ଡେଭଲପ ହୁଏ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ। meaning it requires two different hosts to complete its full life cycle। heterocious ବୋଲେ ଯାହାର ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହୋଷ୍ଟ ବଡି ଦରକାର ପଡେ ତାଙ୍କୁ ହେଟ୍ରୋଇସିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା କି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଣ କି ରୋଗ ଏଇଟା ହ୍ୱେଟ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ ରୋଗ। Wheat is the primary host and barberry is the alternate host। wheat ଟା କଣ primary host ଆଉ barberry ଟା କଣ ନା ତାର alternate host। Basidiospore infect barberry। ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର stem rust of wheat ରେ ବାରବେରୀରେ କିଏ ଇନଫେକ୍ସନ କରେ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସିଡିଓସ୍ପୋର ଇନଫେକ୍ସନ କରେ କୋଉଠି ବାରବେରୀରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱେଟ୍ ରେ କିଏ ଇନଫେକ୍ସନ କରେ ନା ଏସିଏସ୍ପୋର୍ସ ଫ୍ରମ ବେରିବେରୀ ଇନଫେକ୍ଟ ହ୍ୱେଟ୍। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସିଡୋସ୍ପୋର ଇନଫେକ୍ଟ କରେ ବାରବେରୀ କୁ ଏସିଓସ୍ପୋର୍ସ ଇନଫେକ୍ଟ କରେ ହ୍ୱେଟ୍ କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଓସ୍ପୋର୍ସ ଅଛି
टेलिस्पोर्स होची गोटे अवस्था कहार एई व्हाइट डिजीज रो स्टेम व्हाइट डिजीज रो टेलिस्पोर्स ग्रोथ करे कोठी बेसिडोस्पोर रे एई बेसिडोस्पोर्स काको इन्फेक्शन करे बर्बरी को इन्फेक्शन करे बर्बरी रो इन्फेक्शन कला पर एई बेसिडोस्पोर्स कोउथिरे परिणत है स्पर्माटिया रे परिणत होइए स्पर्माटिया कोन होए एसियोस्पोर रे परिणत होए एसियोस्पोर रे परिणत हेले से काको इन्फेक्शन होए सेरल को इन्फेक्शन करे सेरेल्स काहार नाम गहम गछर सेरेल्स को गहम को इन्फेक्शन करे गहम रे इन्फेक्शन हेला पर ए एसियोस्पोर्स कोन हुए आउ थरे परिणत हेई जाय यूरिडाइनोस्पोर रे यूरिडाइनोस्पोर कोन करे से एसियोस्पोर्स तो गहम को आक्रमण करी रखे ए यूरिडाइनोस्पोर्स मध्य आउ थरे कोन करे एई गहम को ही आक्रमण करे कला पर तापर आउ थरे टेलियोस्पोर्स को हेई जाय आउ थरे नुवा जनरेशन सृष्टि हुए A rust fungus requiring two unrelated host is called गोटे fungus बा गोटे rust disease fungal rust disease ଯାହାକୁ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହୋଷ୍ଟ ବଡି ଦରକାର ପଡେ ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ହେଟ୍ରୋସିୟସ୍ ସେଇଟା କଣ ନା ସେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହୋଷ୍ଟ ବଡି ଦରକାର ପଡେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଟ୍ରୋଇସିୟସ୍ କଣ କୁହାଯାଏ heteroecious heteroecious rust complete their life cycle on two different host माने heteroecious माने जार लाइफ साइकिल कंप्लीट हेबा पाई दुईटा डिफरेंट होस्ट बॉडी दरकार पड़े ताकू कुहा जाय कोन आपनकर heteroecious wet stem rust uses wet and barberry जो व्हाइट स्टेम रस्ट जो अछि से केतेटा होस्ट बॉडी यूज करे दुईटा कोन कोन ना व्हाइट एंड बारबेरी Autoecious rust complete the life cycle on a single host species or closely related host group किंतु जदि हेट्रोइसियस से ना दुईटा होस्ट बॉडी किंतु जदि गोटे होस्ट बॉडी जाको दरकार पड़े ताकू कुआ जाय ऑटोइसियस कोन कुआ जाय जहार लाइफ साइकिल कंप्लीट हेबा पई गोटिए होस्ट बॉडी दरकार पड़े ताकू कुआ जाय ऑटोइसियस आ जहार लाइफ साइकिल कंप्लीट हेबा पई दुईटा होस्ट बॉडी दरकार पड़े ताकू कुआ जाय हेट्रोइसियस which rust spore stage repeatedly infect wheat during the growing season माने कहूची जे जेतले स्पोरटा ग्रो करे बा एई जो व्हाइट डिजीजटा जेतले रस्ट व्हाइट डिजीजटा जेतले ग्रो करे रिपीटेडली किए इन्फेक्शन करे देखंतु गोटे तो एसियस स्पोर तो व्हाइट को आक्रमण करी रखिताए जेतेबेले एसियोस्पोर आउ थरे डेवलप हे कि से परिणत हो जाए कोठी यूरिडाइनोस्पोर रे से यूरिडाइनोस्पोर मध्य से गहम को आउ थरे आक्रमण करे सेति पई को जाय कि रिपीटेड इन्फेक्शन हुए कोथरे व्हाइट रे कहा द्वारा रिपीट ता हुए इन्फेक्शन ना सेटा होची यूरिडाइनोस्पोर्स द्वारा Uridianospores are called repeating spore because they are produced on wheat and repeatedly infect wheat during the growing season. से कौन करे repeat करे तार infection को. This repeating stage allows rapid epidemic development when environmental conditions are favorable. आ जते environmental condition favorable होबो ये कौन करिवो एई कौन यूरिडाइनोस्पोर्स को बहुत साहाय्य करिवो डेवलपमेंट हेबा पाई एठी देइची ना कोन एसियोस्पोर भी आक्रमण करि रखिची काहाकू सेरेल्स बा गहम को एसिडोस्पोर्स कोन होय आउ थरे जतले डेवलप हे जाई यूरिडाइनोस्पोर रे से आउ थरे कोन करे ना सेही क्रॉप को आउ थरे आक्रमण करी कि सेथरे डेवलप होय सेति पाई रिपीटेड अटैक कुहा हेची The black stage of wheat stem rust mainly contains ଯେତେବେଳେ ରଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ ସ୍टेम ରଷ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ହୁଏ ସେଟା କେଉ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଥାଏ ନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର କାହିଁକି ହବ ନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ହବ ଟେଲିଓସ୍ପୋର୍ସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟଟା ଟେଲିଓସ୍ପୋର୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଧାରଣ କରେ late in the wet season rust postulates become black because teliospores are formed
ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱେଟ୍ ସିଜନ ବା ଆପଣଙ୍କ ରଷ୍ଟ ହ୍ୱେଟ୍ ବା ରଷ୍ଟ ଷ୍ଟେମ୍ ହ୍ୱେଟ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଏଣ୍ଡ ଆଡେ କଣ ହୁଏ ଟେଲିସ୍ପୋର୍ସ ଟା କଣ ହେଇଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ହେଇକି ଜମା ହେଇ ରହିଯାଏ। ଟେଲିସ୍ପୋର ଆର୍ ଥିକ୍ ୱାଲ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ ସ୍ପୋର୍ସ, ଏଟା ମୋଟା କାନ୍ଥ ହେଇକି ଜମା ହେଇଯାଏ। Karyogamy occurs in telespores and after germination they form basidia that produce basidospores. ତାପରେ ଜର୍ମିନେସନ ପରେ କଣ ହୁଏ ସେ ବେସିଡିଆ ତିଆରି করে ବେସିଡିଆ କଣ କରେ ବେସିଡୋସ୍ପୋର୍ସ ତିଆରି କରେ। ଏଇ ଟେଲିସ୍ପୋର୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକି ସେ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରି ରହି ପାରେ। In wet stem rot basidospores infect, basidospores କଣ କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରେ ନା ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କରେ ବେସିଡୋସ୍ପୋର୍ସ ଇନଫେକ୍ଟ କରେ ବାରବେରୀ ଲିଭ୍ସ କୁ। ବେସିଡୋସ୍ପୋର୍ସ କାହାକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରେ ବାରବେରୀ ଲିଭ୍ସ କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି जे बेसिडोस्पोर्स काहाकू इन्फेक्ट करे बारबेरी लिफ को एसियोस्पोर्स काहाकू इन्फेक्ट करे व्हाइट को इन्फेक्ट करे। नेक्स्ट व्हिच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द रस्ट स्टेज फ्रॉम व्हाइट ब्लैक टू बर्बरी। व्हाइट टू बर्बरी को जीवा व्हाइट टू बर्बरी को जीवा पाई देखंतु एई जो एसियोस्पोर अछि एई जो सॉरी এই जो एसियोस्पोर अछि एटा व्हाइट रे हुए। এই एसियोस्पोर्स कोन हे परवर्ती अवस्था रे डेवलप हे जाय कोथरे यूरिडाइनोस्पोर रे। এই यूरिडाइनोस्पोर कोन हुए आपनकर गहम रे व्हाइट रे आक्रमण करे से आउ थरे ताहले एठु व्हाइट बैक टू बर्बरी व्हाइट रो जाउची कहा परे ना टेलियोस्पोर्स को जाय। टेलियोस्पोर्स जदी प्रॉपर एनवायरनमेंट न पाइला से ब्लैक हे की जमा हे जीवो। प्रॉपर एनवायरनमेंट पाइले से डेवलप हे की बेसिडोस्पोर्स को जीवो। बेसिडोस्पोर्स कहा को आक्रमण करिवो ना बारबेरी को इन्फेक्शन करिवो। नेक्स्ट देखंतु व्हिच इज द मोस्ट सस्टेनेबल कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर व्हाइट रस्ट। এই जो व्हाइट स्टेम रस्ट अछि तार मोस्ट सस्टेनेबल कंट्रोल माने कोन करिवा दरकार ना यूज रेजिस्टेंस वैरायटी एंड मॉनिटर फील्ड। जो वैरायटी रे रेजिस्टेंस अछि एई रोग पाइता सही प्रकार सीड व्यवहार करिवा आ जमी को टाइमली देखिबा जेमिति की एई सिम्पटम देखा गले फंजीसाइड मारी की जिंस को ठीक करिबा। Why is Barbary removal historically important in stem rust management? काहींकी बारबेरी को रिमूव करिबा दरकार कारण कोन ना बारबेरी रे जो बेसिडोस्पोर फेस लाइफ फेस ता कोन होबो कंप्लीट होबो। जदी बारबेरी ही नाही जदी आपन को जमी रे ताहेले केबे भी से एसियोस्पोर हेई परिबो नाही व्हाइट स्टेम रस्ट जदी हेई परिबो नाही ताहेले आपन को एई रोगटा मध्य होबो नाही। Barbary supports the sexual stage of white stem rust। एटा white stem rust रो sexual stage को support करे आ ये कोन करे removing susceptible Barbary can interrupt the full life cycle in area where Barbary contributes to disease and genetic variation। आ जदि Barbary को ही प्लांट को रिमूव करि देबे ता माने कोठी ना कोठी व्हाइट रस्ट टा कोन हेई परिबो नाही आपनकर सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट करि परिबो नाही आ सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट न करि पाइले व्हाइट रे आउ रोग हबो नाही। दिस डज नॉट रिप्लेस रेजिस्टेंस वैरायटी बट कैन सपोर्ट मैनेजमेंट। रेजिस्टेंस वैरायटी रो कामस एटा करिवो नाही बर्बरी को रिमूव करले बट मैनेजमेंट तो हेई जाई परिबो रोग तो कंट्रोल हेई जाई परिबो ना। तो मो वीडियो रे आज एतिकी थिला। जदि आपन मो वीडियो भल लागि थाए प्लीज लाइक करनु शेयर करनु सब्सक्राइब करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। मो नेक्स्ट वीडियो रे आरो पार्ट 2 नै के आसीबी। थैंक यू।